آپ کو واقعہ سناؤں گی. ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا. اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا. چڑیا نے اسے کہا کہ اے انسان, تم نے کئی ہرن, بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں, ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے, کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے, اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا. لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا. ان میں سے ایک نصیحت میں ابھی کروں گی, دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا کر بیٹھ جاؤں گی, اور اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی. اب اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی. اس نے چڑیا کی بات مان لی اور اس سے پوچھا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو, پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا. چڑیا نے کہا, پہلی نصیحت کیا کی؟ کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا. جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا. یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے والی دیوار پر جا بیٹھی. پھر بولی کہ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا. جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا. اور پھر کہنے لگی کہ اے شخص, تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے, کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا ایک انتہائی نایاب ہیرا ہے. اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس ہیرے کو نکال لیتے تو اس کی فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تم بہت امیر ہو جاتے. اب اس شخص نے جو یہ بات سنی تو اس نے افسوس کیا اور پچھتانا شروع کر دیا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر شاید اس نے اپنی زندگی میں واقعی بہت بڑی غلطی کر لی ہے. اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی, اتنی دولت حاصل ہو جاتی. چڑیا نے اسے سوچتے ہوئے دیکھا, سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی کہ اے شکاری, اب میں تمہیں تیسری نصیحت کرنے سے پہلے میں نے تمہیں پہلی نصیحت جو کی تھی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس پر ہرگز یقین نہ کرنا. تم میری پہلی نصیحت کو بھول گئے. تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا جس پر اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ میں اتنا سا وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں اتنا بڑا ہیرا رکھتی ہوں. کیا یہ ممکن ہے؟ تم نے یقین کیسے کر لیا؟ اور میں نے تمہیں دوسری نصیحت کیا کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا, افسوس نہ کرنا. مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم میں مبتلا ہو گئے ہیرے کا سن کے کہ خواہ مجھے جانے دیا, افسوس میں مبتلا ہو گئے. تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا مجھے لگتا ہے کہ بالکل بیکار ہے. تم نے میری پہلی دونوں نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر عمل کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں. یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی. اب ناظرین, اس کہانی کو اگر آپ آج کی سچویشن کے مطابق دیکھیں یا آج کی صورتحال کے تناظر میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے لکھی گئی ہے. ہمارے سیاستدان جو کوئی نصیحت سننے پر آمادہ نہیں ہے, ڈاکٹر, ماہرین صحت, حکومت, اسلام آباد ہائی کورٹ, کسی کی بھی سننے پر تیار نہیں ہے, آمادہ نہیں ہے. ایک طرف ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور دوسری جانب اپوزیشن اتحاد نام نہاد جو تحریک کے نام پر عوام کی جانوں کو باقاعدہ خطرے میں ڈال رہی ہے, جانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. یعنی مولانا صاحب, ایک بار پھر فتح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے حصے میں آئی ہے اور آپ کو منہ کی کھانا پڑی ہے. عوام اور انتظامیہ کو ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کرنے کا منصوبہ آپ کا پٹ گیا, فلاپ ہو گیا, فیل ہو گیا بری طرح سے. اور حکومت نے ایک بار پھر میں کہہ سکتی ہوں کہ بردباری کا اور حکمت کا ثبوت دی ہے. عدالتی فیصلے کے بعد حکومت نے بیک فٹ پر آ کر نہ صرف قانون کی بالادستی کا ایک عملی پیغام دیا, عملاً پیغام دیا جاتا ہے. میری بات یاد ہے کہ زبانی جمع خرچ کچھ نہیں ہوتا, جو پریکٹیکلی کیا جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عملی طور پہ کتنا احترام کرتا ہے کسی بھی ادارے کا. اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اداروں کا احترام سب پر فرض ہے, سب پر فرض ہے. اپوزیشن ملک میں انتشار اور بد امنی کی سیاست چاہتی ہے, بچہ یہ بات جانتا ہے. اور اب تک حکومت نے اسے کوئی یہ موقع کی تلاش میں, غور کیجیے گا میرے الفاظ پہ, لیکن حکومت بڑی بردباری کا, بڑی سمجھداری کا, بڑی حکمت کا مظاہرہ کر رہی اور موقع نہیں دے رہی انہیں. کچھ عرصہ پہلے ہی انڈین میڈیا نے, آپ کو یاد ہوگا کہ خانہ جنگی کی خواہشات کو خبر کی صورت بھی دی تھی. آپ کو یاد ہے خانہ جنگی کی خواہشات انڈین میڈیا کی, ہمارے دشمن ملک کی, بھارت کی, جو کہ ہمارا روایتی حریف ہے, دشمن کی کیا خواہشات ہیں آپ نے دیکھا. اور موجودہ حالات میں حکومت کے اہم اتحادی شیخ رشید صاحب نے اس تمام جو سچویشن ہے, صورتحال ہے, اس کا تجزیہ کیا ہے. اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے شیخ رشید صاحب کی یہ بات میرے خیال سے حقیقت سے بہت قریب معلوم ہوتی ہے. اور ناظرین, سرد موسم میں سیاسی گرما گرمی
को रूज पर पहुंच चुकी है। और ये जो PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इसने मुल्तान में हर सूरत जलसे की जो अपनी एक जिद है ना, जिद्दी बच्चे की तरह इन्होंने जिद लगाई हुई थी। इतने बड़े बड़े लोग हैं, खुद को कहते हैं कि हम सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी, हमने बाल सफेद किए हैं सियासत करते करते, किसी के बाल सफेद हो गए, किसी के वैसे ही झड़ गए, और अभी भी बच्चों की तरह ये जिद करते हैं। सोच लें कि कितने मैच्योर हैं अंदर से। घंटाघर चौक पर सियासी कायदीन ने खिताब किया और PDM रहनुमाओं की तोपों का रुख आपने देखा, सुना कि एक बार फिर रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ रहा। और ये पहली बार नहीं हुआ, हमेशा इनकी तोपों का रुख रियासती इदारों के खिलाफ रहता है, उस जानिब रहता है। यानी रियासती इदारे इनके टारगेट पर होते हैं, हिट लिस्ट पर होते हैं, निकलते हैं अवाम के लिए, अवाम के दुख के लिए, अवाम के दर्द के लिए। अवाम की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अवाम को हम इस तरह से सत्ता नहीं देख सकते, अवाम बेचारी, अवाम ये। लेकिन जाते हैं तो तनकीद के नश्तर आप इदारों पर बरसाते हैं, इदारों की जानिब आपके तनकीद के नश्तर जा रहे होते। पागल किसे समझते हैं आप लोग? पागल किसे समझते हैं आप लोग? नवाज शरीफ के रियासत मुखालिफ बयानिए को एक बार फिर अगर मैं कहूं कि दोहराया गया तो तमाम अवाम जो मुझे इस टाइम पे सुन रही, सब मेरे अल्फाज से अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरे अल्फाज को। बयानिया वही था नाजरीन, ऐसा ही है, बयानिया वही था, लेकिन जबान किसी और की थी, शक्ल किसी और की थी। चले ऐसे समझ लें, बयानिया वही था, जबान किसी और की थी, चेहरा किसी और का था। और अख्तर मेंगल ने अपने खिताब में रियासती इदारों को किस तरह हदफ तनकीद बनाया, आप सबने सुना। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का क्या कहना था कि मुल्तान की अवाम ने आज तख्त भी और ताज भी गिरा दिए। हुकूमत ने जलसा रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और रुकावटों की वजह से, क्या कहते हैं कि रुकावटें जो थी उसकी वजह से मुल्तान के गली कूचों में जलसा है। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा सच बोलना चाहूँगी, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत से लोगों को दुखती हूँ, बहुत से लोगों को मैं बुरी लगती हूँ क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। और कहते हैं ना सच तो कड़वा होता है, तो आज भी ज़रा सच सुनिएगा, सच सुनिएगा। आप लोग गली कूचों की बात करते हैं ना कि हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की तो गली कूचों की हद तक रह गए आप लोगों की जो असल जगह है ना यही है। आप लोगों की सियासत बिल्कुल गली मोहल्लों वाली ही है। ये एक ऐसा सच है जो कि कड़वा है और उसको आप हजम करें, सुने। आप लोगों की सियासत गली मोहल्लों वाली ही है। वो गली में वो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट खेल रहे हैं, वैसे ही आपकी सियासत का खेल चल रहा है, गली मोहल्ले की हद तक। मुल्की सियासत या मुल्की सतह तो क्या, आप लोगों की सियासत तो सूबाई सतह तक भी ना उठ सकी। ये है आपकी औकात, ये है आपकी हकीकत। पता नहीं किन हवाओं में आप अवाम के मुस्तरद करदा टोले की सूरत में अवाम ने ये रिजेक्ट किया आपको, मुस्तरद करदा, रिजेक्ट हुए हुए मुस्तरद करदा टोले की सूरत में। अब आप लोगों का काम गली मोहल्लों में तमाशे करना ही रह गया है। तमाशे कर रहे हैं आप, और अब मेरे ख्याल से तमाशे करते रहेंगे। और अख्तर मेंगल साहब मजीद क्या कहते हैं आगे, कहते हैं जी कि हमें गालियां देने की तरबियत नहीं दी गई, हमें गाली दी गई तो जवाब गाली से नहीं थप्पड़ से देंगे। मुल्क में हुक्मरानी सिर्फ वोट की होगी, हम वोट की इज्जत हैं और ये आवाज़ को दबाया जा रहा है। मैं यहाँ पूछना चाहूँगी मोहतरम अख्तर मेंगल साहब, आप किस मुंह से वोट को इज्जत देने की बात कर रहे हैं? PDM का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा चल रहा है वो क्या है कि किसी तरह मौजूदा हुकूमत को घर भेजा जाए। इसके लिए क्या आईनी, क्या कानूनी तरीका कार हो, आपको तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अवाम को क्या नजर नहीं आ रहा? अवाम आपको अंधी लगती है, बेवकूफ लगती है, अवाम को आप लोग पागल समझते हैं। अवाम को सब नजर आ रहा है। ये जो जलसे के नाम पर आप लोग तमाशे लगा रहे हैं, तमाशे, ये सब गैर कानूनी था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मानते हैं आप? मुल्क की अदालतों को मानते हैं आप? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी में NCOC के फैसलों का हर शहरी पाबंद है। क्या आप लोग खुद को शहरी नहीं समझते इस मुल्क का? NCOC ने मुल्क में इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर रखी है, ये याद है आपको। लेकिन आप लोग ना तो रियासती इदारों की सुनने के रवादार हैं, ना ही हुकूमत को आप कुछ समझते हैं, अदलिया का आप लोगों को कोई एहतराम ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपने मुफाद की पड़ी कि किसी तरह आप लोगों की दाल गल जाए। ना आपके दिल में अवाम का कोई दर्द है और ना ही आपको अवाम से कोई हमदर्दी। ये बात अवाम जानते हैं, तभी तो आप लोगों को मुस्तरद किया गया है। नहीं मिले ना आप लोगों को वोट, जिस बात का दुख आपको खाए चला जा रहा है पिछले 2-2.5 साल से। मान लेना हकीकत को कि अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। आप लोगों को रिजेक्टेड टोला है, मुस्तरद शुदा टोले हैं आप लोग। और मरियम नवाज ने अपने वालिद जो कि लंदन में मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, भागे हुए हैं, अदलिया बुला बुला के थक गई, आ नहीं रहा वो बंदा, उनसे डिक्टेशन लिया हुआ सबक पढ़कर सुनाया मरियम ने अपने वालिद की डिक्टेशन, मफरूर वालिद के, इश्तिहारी वालिद की डिक्टेशन। बीबी जितने लोग देखने आते हैं ना, लाजमी नहीं कि वो आपके वोटर ही हों, वो आपको देखने आए होंगे, वोट डालने नहीं आए होंगे।
वोट मिलता है आपके बयानिए पे, आपके विजन पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी कारकर्दगी पे, और मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी कि आपका सब कुछ 0 0 अंडा। अच्छा जी, फनकारी का फ़न मेरे ख्याल से इनके ख़ानदान की मिरास है, और आपके वालिद साहब की जो फ़नकारी है, मैं तो यकीनी तौर पे मतलब मैं यकीन से कहती हूँ एक बात कि मैं बड़ी फ़ैन हूँ आपके वालिद की फ़नकारी की कि किस तरह बीमार बने रहे, मतलब प्लेटलेट्स के ड्रामे होते रहे, और एक एक दिन में पता नहीं 4 हार्ट अटैक आते थे उस बंदे को, फिर भी वो ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा सलामत है, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। लेकिन ये तमाशे वो बंद कर दें, ये फ़नकारियाँ थोड़ी कम कर दें मेरे ख्याल से। अब जैसे ही वो जो फ़नकार साहब हैं इनके वालिद मोहतरम, वो लंदन की फ़ज़ाओं में गए तो वहाँ सब कुछ ठीक हो गया, दिल भी सही चलना शुरू हो गया, नब्ज़ भी सही चलना शुरू होगी, सांस भी दोबारा सही से आना शुरू हो गया, और बिल्कुल सेट हो गए मियाँ साहब वाले के, हशाश बशाश, सैर सपाटे शुरू हो गए, शॉपिंग शुरू हो गई, रेस्टोरेंट्स में खाते शुरू हो गए, खाने पीने के तो बड़े शौकीन है, मुल्क को भी खाते रहे और वैसे भी खाते रहे। अब इतने मसरूफ़ हुए ये मियाँ साहब, इतने मसरूफ़ हुए वहाँ पे शॉपिंग में, खाने पीने में, अयाशियों में, इतने मसरूफ़ के जिस मकसद के लिए ये मियाँ साहब इस वतन से गए थे, 100 ड्रामे करके, 1000 ड्रामे और तमाशे लगा के, वो मकसद ही जाके भूल गए। अब लंदन में सब कुछ हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ नहीं हो रही। क्या कहने लगी हूँ मैं नाज़रीन, ज़रा मेरे साथ मिलकर बोलिए, क्या नहीं हो रहा? इलाज। सही समझिए आप, वहाँ सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इलाज नहीं हो रहा मियाँ साहब का, जिसके लिए यहाँ से गए थे इतने तमाशे और ड्रामे करके। अब इलाज अगर हो भी, आपस की बात है, तो किस चीज़ का हो? कोई बीमारी हो तो इलाज हो ना, और फनकारी के लिए तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं होती। आपका खिताब, आप तो बुग़्ज़ और दावत में हर हद, हम कहते हैं ना कि पार कर गया कोई, आप हर हद यकीनी तौर पे पार कर चुकी हैं। शायद यही वजह है कि अब भी आपको दूसरे दर्जे की सियासी क़यादत समझा जाता है। दूसरे दर्जे की सियासी क़यादत किसे कहते हैं समझती होंगी आप, बड़ी अक्लमंद हैं, ये मैं नहीं कह रही। किसी भी जलसे में, मैं ज़रा नाज़रीन को समझाती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। अच्छा नाज़रीन, किसी भी जलसे में जो जूनियर कायदीन हैं वो पहले खिताब करते हैं और सीनियर क़यादत आखिर में। आपने देखा होगा कि सबसे एंड में सीनियर क़यादत आती है। अब आज ज़रा गौर कीजिएगा, आज मुल्तान जलसे से डेब्यू किया था ना आसिफा जरदारी ने, डेब्यू करने वाली आसिफा जरदारी, उससे भी पहले इन्होंने खिताब किया, यानी सीनियरिटी में आपका नंबर तो आसिफा के भी बाद में आता है। कैसा लग रहा है आपको सुनकर? अब इससे आप अपनी हैसियत और अपनी बात की अहमियत का अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए। मेरे ख्याल से मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं मरियम।